हेलो, वेलकम टू प्रिया करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो हाउ नेटिव्स स्पीक देयर इंग्लिश के लिए है। इस वीडियो में हम ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस बोलने की कोशिश या प्रैक्टिस करते हैं जिस प्रकार से नेटिव्स अपनी अंग्रेजी बोलते समय जिस प्रकार से नेटिव्स अपनी इंग्लिश बोलते हैं उसी प्रकार से हम भी उन सेंटेंसेस को बोलने की यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। इससे प्रोनाउंसिएशन के वो रूल्स जिनको नेटिव स्पीकर्स जिनको फॉलो करते हैं उन रूल्स के विषय में हमको जानकारी होती है और उन रूल्स को हम हमारी लैंग्वेज में भी फॉलो कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं आज के हमने कौन से डायलॉग्स लिए हैं। योर फर्स्ट डायलॉग इज वेयर आर दीज कीज। वेयर आर दीज कीज या वेयर आर का प्रोनाउंसिएशन होता है वेयर एंड आर का प्रोनाउंसिएशन होता है वास्तव में आर, लेकिन ये दोनों मिलकर के वेयर का वेयर यहाँ पर वेयर का वेयर एंड आर से सिर्फ आ साउंड आ जाती है यहाँ पर और हम कहते हैं वेयर आर दीज कीज, वेयर आर दीज कीज, where are these keys, where are these keys, where are these keys. Next sentence is maybe they've fallen out of the cow pocket and into the valleys. Maybe they've this is they've fallen out becomes fallen out of becomes fallen out of fallen out of. The coat pocket becomes cow pocket. प ब म से पहले जब कोई ट साउंड आती है then ट is also pronounced as प, तो coat pocket becomes cow pocket. cow pocket मेरे मुंह की तरफ भी देखें, look at my mouth. coat pocket becomes cow pocket. So maybe they've fallen out of the cow pocket and into becomes an into, and becomes an into becomes into and दोनों मिलकर के बन जाते an into the valleys. So maybe they've fallen out of the cow pocket and into the valleys. Maybe they've fallen out of the cow pocket and into the valleys. Maybe they've fallen out of the cow pocket and into the valleys. This is the second sentence that is spoken. Third sentence है maybe your keys are upstairs, Dad. Maybe your keys are becomes keys are becomes keys यहाँ ये keys हो जाता है keys and r becomes keys. इस तरह से यहाँ पे देखिए maybe your keys लेकिन उसके बाद क्या है यहाँ अ से स्टार्ट होता है upstairs. चूंकि यहाँ वावल साउंड है इसलिए इस र साउंड को भी हम अकाउंट में लेते हैं या काउंट करते हैं और तब ये कीज आर अपस्टेयर्स तीनों मिलकर के हो जाता है कीज आर का अर एंड अपस्टेयर्स और इस तरह से हो जाता है कीजर अपस्टेयर्स कीज आर अपस्टेयर्स becomes कीजर अपस्टेयर्स कीजर अपस्टेयर्स. So how is it spoken? It is spoken maybe your keys are upstairs, Dad. Maybe your keys are upstairs, Dad. Your becomes your. Maybe your keys are upstairs, Dad. 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 Now next sentence is yes, the bedside table. I'll be with you in a minute, grandma. Yes, the bed side. यहाँ बेड साइड में जब स से पहले ड आता है तो ड को या तो हम सही प्रोनाउंस करते हैं या फिर हम उसको छोड़ देते हैं. सो बेड साइड बिकम बेस्ट साइड. Bad side become
best side, best side, best side. So yes, the best side table, not bad side, best side, best side. Yes, the best side table. Yes, the best side table. I'll be with you in a minute, grandma. In a minute. Minute का लास्ट जो साउंड है दैट इज ट, एंड ट के बाद क्या है, ग साउंड है, ग्रैंडमा. तो इसमें अगर ग से पहले अगर ट आता है तो ट को हम क प्रोनाउंस करते हैं. सो मिनट ग्रैंडमा बिकम्स बन जाता है मिनी ग्रैंडमा. इन अ मिनी ग्रैंडमा. In a minute grandma becomes minic grandma. मिनट प्लस ग्रैंडमा दोनों मिलकर के मिनिक. ये मिनट ट को क कर दिया गया है यहाँ. ये क्या था, यहाँ ट है, ट को क्या कर दिया गया है, क कर दिया गया है. ट है, ट हैज बीन चेंज्ड इनटू क, एंड मिनट ग्रैंडमा की जगह हो जाता है मिनिक ग्रैंडमा. So how the sentence is spoken? Yes, the best side table. I'll be with you in a minute, grandma. Yes, the best side table. Yes, the best side table. I'll be with you in a minute, grandma. Yes, the best side table. I'll be with you in a minute, grandma. I'll be with you. I'll be. I shall be. I'll be. I'll be with you. यहाँ be का भी pronunciation be. I'll be with you. I'll be with you in a minute, grandma. Yes, the best side table. I'll be with you in a minute, grandma. Next, grandma में भी आप बहुत बार पहले भी बताया है, पहले के sentences videos में भी बताया है. And again, grandma becomes grandma. Grandma becomes grandma. Here I am coming. I'll tell you. Why is your dad taking so long? Why is become wise. Why is your dad? Why is your dad taking so long? 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 Shall I go and find out for you, grandma? Shall I? Shall. इसका जो कैजुअल प्रोनाउंसिएशन है और वीक प्रोनाउंसिएशन दैट इज shall I go, shall I go and find, go and becomes un, and go and दोनों मिलकर हो जाते go on find out. इसमें ड को छोड़ दिया जाता है, ड का प्रोनाउंसिएशन छोड़ दिया जाता है, तो find out becomes find out. Go and find out. Shall I go and find out? Find out. For you becomes for you. For you. Long sound में for you, otherwise for you. And grandma becomes grandma. ग्रैंड में से हम ग्रैन लेते हैं एंड म में से म लेते हैं, तो ड को हमने छोड़ दिया तो यहाँ ये जो वर्ड है ये न साउंड पर ख़त्म हुआ, और जब ये न साउंड पर ख़त्म होता है तो ब म इससे पहले अगर न आता है तो द न ऑल्सो गेट्स चेंज्ड इनटू म, तो ग्रैंडमा बिकम्स ग्रैंडमा. सो शैल आई गो एंड फाइंड आउट फॉर यू ग्रैंडमा? Shall I go and find out for you, grandma? And I hope ये आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इन प्रोनाउंसिएशंस और डायलॉग्स की मैंने भी प्रैक्टिस की है, तब आपके सामने बोल पा रहा हूँ. एंड आई होप जैसे मैं आपके सामने प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसी तरह से अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी बहुत अच्छी और फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे होंगे. बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से ही आप एक दिन फ्लुएंट स्पीकर हो सकते हैं. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे, ये कहावत है. तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती है, तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी ये प्रैक्टिस करके आप बहुत बड़े स्पीकर बनने की कोशिश करें. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर हाउ नेटिव्स स्पीक देयर इंग्लिश. दूसरे एपिसोड के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे. थैंक यू. बाय बाय.